એક શબ્દ મારો નથી, ફક્ત હું એક જ ચીજ જાણું છું, આજે અને આવતા વર્ષોમાં પણ દાદા ભગવાન એ દાદા ભગવાન છે. બસ શું છે? જેને કામ કાઢવું હોય એને એક એક વાત જે એના ગજામાં હોય, આપણે એવું નથી કહેતા તું બધું સમજી જા, પણ જ્યાંથી શરૂઆત કરો ત્યાંથી પોતાનું એક વાતની તમે વાતને સમજી અને ધીરે ધીરે શક્તિ માંગતા માંગતા ચાલ્યા જવાનું છે. શું છે? એટલે એક દિવસ દાદા ભગવાન ભાઈજી દરોગાની પોરમાં એક શબ્દ બોલેલા. તે વખતે ખબર નહીં હા હરીશભાઈ કે આપણને આવું બધું બોલવાનું આવશે. આપણે તો ખબર દાદા છે એ પહેલા આપણે જતા રહીશું. દાદા જ જતા રહ્યા. તો કે જો કૃપાળુદેવ કેવું કે છે કે જો તમને આવું સરસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તો ગુપ્ત વેશે ચાલ્યા જજો. આ કેવું કે છે કેવા ચાલ્યા જજો? કેમ એવું કહ્યું હશે? જો પૂર્ણાહુતિ કરવી હોય, શું કરવી હોય? હવે એ જ કૃપાળુદેવની વાત કરું પાછી. એ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીને જ્યારે પોતે પુરુષાર્થ એમનો હતો જ બધો કેટલાય અવતારોથી, એટલે એમણે એમના નજીકના બધા હતા ને એમને કહ્યું, એ 2-4 જણ જ હતા, વધારે નહીં પાછા, કે હું આ કાળનો બીજો મહાવીર છું એમ કહું તો પણ ચાલે. શું કે છે? હું આ કાળનો મહાવીર છું, બીજો મહાવીર છું એમ કહું તો પણ ચાલે. આજે હું સર્વજ્ઞ સમાન થઈ ચૂક્યો છું કે છે. શું કે છે? સર્વજ્ઞ એટલે તીર્થંકર ભગવાન. શું કહેવાય? એમના લેવલ પર આવેલું છે આ મારું લેવલ, પણ હજુ અમારે વાર છે. શું કે છે? હજુ અમારે કેમ એવું બોલ્યા હશે? આ દાદા બોલતા હતા તે કહું છું, વાંચેલું નથી કહેતો બધું તમને. એટલે દાદા ભગવાને આપણને એક એક મહાત્માઓને કાયમ એક શબ્દ કહેતા હતા કે તમે તમારું કામ કાઢી લો હા ને તો તમને લોકો ધક્કા મારીને કાઢી મૂકશે. મહેશભાઈ બોલતા હતા એવું શું? એટલે સત્સંગમાં નહીં જવું, સત્સંગ નહીં કરવો, પ્રોગ્રામમાં નહીં જવું એવું વાત નથી. આ ભાઈથી પોતાના પુરુષાર્થની ધૂણી ધખાઈ નાખો એકવાર, બાકીનું કામ કુદરત એની મેરે કરશે. કરે કે ના કરે? હે, કોઈ સારી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં કોઈ કંપની બનાવતી હોય તો ધીરે ધીરે ચાલે કે ના ચાલે? દોડતા લઈ આવે. હે, દોડતા લઈ આવે સીધી. અરે મેં તો એટલે સુધી જોયું છે, નો માર્કેટિંગ. લોકો તમને એ પ્રોડક્ટ બજારમાં જુએ ને અને પછી પેલો કે આ કઈથી લાયા? તો કંઈથી. તો ફોન કરે, સાહેબ મને માલ આપજો. એવું બને કે ના બને? ક્વોલિટી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ. શું કે છે? આ રિલેટિવ વાત છે. તો આપણે આ દાદાનું જ્ઞાન અવકાશમાં એને ઘૂંટો, જેમ ત્રિમંત્રો, નમસ્કાર વિધિ, આ તે પોતાની ભૂલો 2-4 દેખાય તેના પ્રતિક્રમણ કરો, શક્તિ માગો. આજ્ઞા ના રહે તો શક્તિ માગો, પડો જ્ઞાનીની પાછળ. શું કે છે હરીશભાઈ? ચાલે ને આટલું તો કામ થાય એવું છે? તો કામ થશે, મારાથી નહીં થાય. ખોટું નથી ને એમાં? જેમ છે તેમ કહી દેવાનું. મારી પાસે જેટલી છે દાદાની કૃપાથી એટલી વાત તમને હું કહીશ કે જો મને આવો રસ્તો જડ્યો છે, હું આ રીતે એનો મને આવો અનુભવ છે એમની કૃપાથી, પુરુષાર્થથી નહીં. શું? એમની કૃપાથી. કારણ કે કૃપા સાધ્ય માર્ગ છે. એટલે શું હોય કે આપણે એના ચરણમાં માથું મૂકી દેવાનું. જે છો એ તમે જ છો. ખ્યાલ આવ્યો?
મારું રાગે પાડો. એ તો અંદર એવો માળ પડ્યો છે ને કે આપણને છેતરે એવો છે. શું છે? કેવો છે? અને તમને કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે ને તમને માથું મૂકવાનું ત્યારે જ ઈચ્છા થશે કે એમની કૃપાથી જ્યારે મેં અજવાળું જેમ જેમ થતું જશે ને પોતાની ભૂલો દેખાશે, ઓહ આટલું બધું ભયંકર ભૂલોનો પોટલા પડ્યા છે, એટલે તમને પછી છે ને કશું આ બોલવાનું થાય ને કે કશું બી તમને વ્યવહાર આવે ને, તમે અહીંયા આવો ને આમ આમ એ સાહેબ રવા દો ને બાપા. સમજ્યા હરીશભાઈ? સમજ્યા તમે? ભૂલ વગરના કમ્પ્લેટ થવું એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા એ ભૂલ વગરનું સ્વરૂપ છે. કેવું છે? પણ જ્યાં સુધી આનામાં અશુદ્ધિ પડી છે એ પરફેક્ટ શુદ્ધ થવી જ જોઈએ. શું થવું જોઈએ? એ પુરુષાર્થ છે. શું છે? બાકી શુદ્ધાત્મા મેલો છે જ નહીં. એટલે આપણે આવું બધું પુરુષાર્થ માનવાની જરૂર છે. એ તમે બધા માણો છો. બોલો બીજું કઈ? તમે માનો એટલો બધો નથી માગતા અમે. હે? તમે કહો છો એટલું બધું નથી હતી પાવરથી કહેતા. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, એકવાર કોઈ પણ માણસ ટ્રેનના છેલ્લા ડબ્બામાં બેઠો તોય પણ એ મુંબઈ પહોંચશે. કોઈ પહેલા ડબ્બામાં બેઠો, કોઈ એસીના ડબ્બામાં બેઠો, એ એની પોતપોતાની અનુકૂળતા, સગવડતા, સંજોગ પ્રમાણે છે. તો પછી પણ જો ટ્રેનમાંથી ઉતર્યા તો નો ગેરંટી. હરીશભાઈ બરાબર? એક મિનિટ, એમાં તમે જે અત્યારે પુરુષાર્થનો આમ એકદમ પારો ચડાવો ને પછી એમ બોલો એટલે પાછી અમારી પકડી લે કે આ બરોબર છે. એટલે જે પુરુષાર્થનું જે તમે આમ સુરાતન કે જે ઉપયોગ રાખવો છે આના જેવો, એ જે અત્યારે પકડે ને પછી આ જે બોલો ને ત્યારે એ જે ઢીલો દાખલો આપો ને તો કે આપને આ બરોબર છે એમ કહીને બુદ્ધિ ગોઠવી લે પાછી. એ તો ભાઈ તમારે જાગ્રત રહેવું પડે. તમારે ભગવાનને કહેવું પડે કે મારી બુદ્ધિ મને આવું કરાવડાવે છે, સાહેબ તમે મારો ઉપાય કરો. કારણ કે જે માસ્ટર હોય ને એનું કામ છે આમાં. શું છે? તમે હવે કરો, તમે માસ્ટર જ છો અમારા માટે. એ તમે ગમે એટલું બોલો, હું ના પેસવા દઉં અહીંયા આગળ. જો હું માસ્ટર હોત ને તો દશા જુદી હોત. એ કેવી થઈ વસ્તુ, એકવાર બોલું ને એટલે તમારું આવરણ તૂટી જ જાય ફાટ. પણ જો વાણીનું માલિકી પણ વાણીની અંદર નબળાઈઓ ગઈ નથી. હજુ આ ઘણી બધી કચાશો છે. આ તો તમને ખાલી મારે તમે પૂછો એટલે મારે વાત કરવાની. જ્યાં સુધી આ પૂતગલમાં એક પણ ભૂલ છે ત્યાં સુધી કોઈ ચીજ ખપે નહીં મને. શું કહું છું? આ મારો નિશ્ચય છે. શું છે? આકાશ નીચે પડવાનું નથી, માણસો જવાના નથી. કુદરતમાં કલ્યાણ. દાદા ભગવાન 10 લાખ વર્ષની યાત્રા કરતા કરતા આયા અને આપણને મળ્યા. હરીશભાઈ વાત સાચી ખોટી? કેટલી ધીરજ રાખી હશે? એક વ્યવસ્થિત કરતા શોધવા માટે કેટલા અવતાર ગયા છે સાહેબ. એ પુરુષની હું વાત કરું છું. એટલે ધીરજ, પણ પરફેક્શન જોઈએ. શું જોઈએ? એટલે એમણે કહ્યું કે રસ્તે ચાલનારને જ્યારે હું મોક્ષ આપી શકીશ ને ત્યારે મોક્ષે જઈશ. એ ક્યારે બોલી શકે હરીશભાઈ? એવું સામર્થ્ય, એવી શક્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ. ના થઈ તો આપણે એ વાતને ઘૂંટવી જોઈએ ને કે આપણે પરફેક્ટ થવું જેવું. હે એટલે આપણે ઘૂંટવું જોઈએ ને કે જો આ દાદા કેવા રસ્તે ચાલ્યા તો આપણે પરફેક્ટ થાવ, એમ હું કહેવા માંગુ. અને પરફેક્ટ થવાનો આપણો રાઈટ છે. મળી જ જશે, મળી જ જશે, બધું જ મળી જાય. આ જગતમાં બધું જ છે. પોતાની તૈયારી જોઈએ, દ્રઢ નિશ્ચય. શું કે છે? એક જ ધ્યેય, દ્રઢ નિશ્ચય, અખંડ જાગૃતિ. શું કે છે? પ્રબળ પુરુષાર્થ. એટલે તમારે બધા છે ને વ્યવહાર હોય, બધાને તમને બધાને વ્યવહાર હોય, મને મારી રીતનો હોય. પણ અવકાશ મળે ને તો તમે આ બધું ઘૂંટો, શક્તિ માગો, આ કરો. 2 મિનિટ, આપણે એવું નથી કહેતા કલાક કલાક કરો. પણ એ તો આ પ્રકૃતિની જોડે કામ લેતા આવડવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? તમને ખબર છે કેટલો દમ નીકળે છે? જો
જેટલી ચીજ દાદાને મળ્યા પછીથી હમણાં ખબર પડે છે ને, પણ કેટલું બધું કામ મારી પાસે છે એ મારું કામ કરવાનું, પણ એ થઈ શકતું નથી. કારણ કે એ પુઠ્ઠિયું જ નબળું છે. શું છે? ને પુઠ્ઠિયાની અંદર કચરો એટલો બધો છે. એટલે થોડી વાર કશું કરવા ગોઠવણી થાય ને પછી ઊંઘ ચડી જાય. શું ચડી જાય? થોડી વાર થાય ને તો હું પાણી પીને આવું, ખલાસ. સમજાય? મને ખબર છે કે પ્રત્યક્ષ હરિહંસ છે સિમંદર સ્વામી. મને ખબર છે કે દાદા ભગવાનની જોડે પ્રાર્થના કરું ને એમને રસ્તા બતાવેલો, હું આ કામ આટલું આટલું કરું તો શું થાય. એકવાર મેં નક્કી કર્યું હરીશભાઈ કે રોજ એક કલમની આખો દિવસ આરાધના કરવાની. અવકાશ મળે ને એટલે કલમની આરાધના કરવાની. ગાયબ, ફિનિશ. એકવાર નક્કી કર્યું કે પ્રાપ મન વચન કયાથી દુઃખ ન આખો દિવસ અવકાશ મળે ને એની મારે આરાધના જ કરવી છે. યાદ આવે તો ને એવા ધક્કા, એવા સંજોગો. કારણ કે આ પ્રકૃતિ આપણે એવી લાયા જ નથી કે એટલી સિન્સિયરિટી અંદર રહે. પણ ધીરે 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 આપણે બધો ટ્રીટમેન્ટ થાય. શું થાય? આ પ્રાપ મન વચન કયાથી કોઈને દુઃખ ના હો એ આરાધના કેવી છે? કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય એક જ વાક્યની આરાધના જો માણસ 1 કલાક કરે ને, તમે એનું ફળ જુઓ તો ખરા શું છે. પણ આજે આપણે બધું વાંચીએ છીએ, પણ આપણાથી તમે તપાસ તો કરો બધા. થાય એવું છે હરીશભાઈ? સિમ્પલ વાક્ય છે ને. હવે આ તો તમને ખાલી એક વાત કહું છું. જ્યારે મને સમજાયું કે આ બધી વસ્તુથી શું શું નુકસાન છે, એટલે મેં એક વખત નક્કી કર્યું કે જો આ રસ્તે નુકસાન હોય ને તો એ ચીજ મને નહીં જોઈએ. હરીશભાઈ, થોડી પ્રકૃતિ જાળીને બરછટ ખરી ને મેં ડિસિઝન લીધું તો કોઈ પણ સંજોગોમાં પેસવા જ ના દો આ ચીજને. હવે જ્યારે થોડા દિવસ પછી એ સંજોગ આવ્યો, મેં કહ્યું જય સચ્ચિદાનંદ ભાઈ, મને આ પોસાય એવું નથી. એટલે મેં જય સચ્ચિદાનંદ કરીને હાથ અદ્ધર કર્યા. મારા પર પ્રેશર આવ્યું. શું આવ્યું? તમારાથી આવું ના કરાય, તમારા આ તો કરવાનું જ આવું. પણ મેકુલા ભાઈ તો કે નહીં, હવે શું કરવું મારે? હું સત્સંગ છોડી દઉં? દાદા ભગવાને આપતા પુત્રોને જે રીતે ગઢ્યા છે ને, એના એક એક વચનો જ્યારે પણ આંખ સામે આવશે ને, કોઈને ખબર પડશે ને, આમ અહો અહો થઈ જશે. ધન્ય છે દાદા ભગવાન, તમે કેવા અમને તૈયાર કર્યા, કેવા અમને ચેતવ્યા છે. પણ આપણે, હું એ રસ્તે પૂરેપૂરો ચાલી શક્યો નથી. પણ ખેર રાખજો, મારી જાતને કહી દીધું છે આ રસ્તા સિવાય અન્ય કોઈ રસ્તો આપણે ના હોય. હરીશભાઈ સમજ્યા? જાગ્યા ત્યારથી એટલે આવા દાદા, આવું જ્ઞાન, આવો પુરુષાર્થ, આપણી નબળાઈઓને શોધો. આખો દિવસ અંદર બધું જાત જાતનું સામાન પડ્યો છે, બહુ મુશ્કેલી પડે એવું છે. એ ચોખ્ખું નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્વાદ ના આવે. સમજાય? આપણે શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ શું? જોવા જાણવાનો. આપણે આ જાતને જોઈ ખરી? આપણે તપાસ કરવી જોઈએ. રહ્યું ખરું? સવારે બ્રશ કરીએ તો કે આ મારું સ્વરૂપ ન હોય. આપણે જમવા બેઠા, નાસ્તો કરવા બેઠા અને કંઈક ગડબડ લાગી નાસ્તામાં અને અંદર બોલવા ગયું કે અંદર ઊભું થયું તો આપણે વળ્યા? ચોપ. તમે ગયા અવતારમાં બોલો માગ્યું હતું ને એ આવ્યું છે. અવાજ નહીં જોઈએ. કોણે મોકલ્યું છે? વ્યવસ્થિત બનાવનાર કોણ છે? આ છે. ખરેખર કોણ છે? શુદ્ધાત્મા છે. તમે કોણ છો? હું કોણ છું? સમજાય તમને? દાખલો તો ગણવો પડે ને બર્યો. આ ગણિતમાં કંઈ કોઈ ટીચર મને નથી લાગતો કે કોઈ સ્કૂલનો એનો છોકરો હોય તોય ના ચાલે. મોટા પ્રિન્સિપાલનો છોકરો હોય ને તોય પણ રકમમાં જો રીત હરકી ના હોય તો માર્ક અપાય જ નહીં. અપાય?
ભાઈ ચોકડી જ જવાબ સાચો લખો એટલે માર્ક ના મળે સાહેબ. આવું છે આ વિતરાગોનું વિજ્ઞાન. આવું કહીએ તો સારું કે નહીં? ધીરે ધીરે પ્રકૃતિ તૂટે ને, અંદર જ્ઞાન ગોઠવાય ને ધીરે ધીરે. મારે આપતા પુત્ર થઈને નહીં બેસવાનું કે શુદ્ધાત્મા થઈને? બોલો હવે કેવી રીતે બેસવાનું? આ કર્મના ઉદયથી ખુરશીમાં બેહાડે. હું બેસનારો થઉં તો મને માર પડે કે ના પડે હરીશભાઈ? એવું તમને પણ ખરું કે નહીં? મોક્ષે જનારાને બધાને સિદ્ધાંત લાગુ પડે. શું છે? હું બોલનારો થયો તો માર પડે કે નહીં? હું સમજુ છું ને પરફેક્ટ થઈ ગયો છું તો માર પડે કે નહીં? એમાં તમારું અહિત કે મારું અહિત? જે જેનું માને એનું અહિત છે. શું છે? સીધો જવાબ છે સંયમ પરિણામ, અસંગ, અવ્યાબાદ, નિર્લેપ. એનો ટેસ્ટિંગ જોઈએ. શું જોઈએ? શું જોઈએ? એટલે આ બહુ સરસ વિજ્ઞાન મળ્યું છે ને જો આપણે બધાનો લાભ લઈશું ને, આ તમે બધા ઘરમાં હો ને, બધા ધંધામાં હો કે ઘરમાં હો ને, તો તમને બધું ના ગમતું ગમતું બધું આવે. તે વખતે આપણે કહેવું, કોઈ વસ્તુ જુએ ને અંદર પરિણામ ઊભું થાય કે જો આણે આવું કર્યું, તે વખતે આપણે અંદર બોલવા જાય ને તો જો તમે જાગ્રત હો તો કહી દે ચૂપ. તમે ઘરની બહાર હોય ને આવું બધું થયું હોય તો બોલવા જાઓ? જોયું માટે બૂમો પાડવાની ને. હવે જોયું હોય એ માણસ કેવો હોય? હેલ્પફુલ હોય. કેવો હોય? હે, ગભરાશો નહીં. હા, લે હું કરવા લાગુ. દાદા કે નોકરના હાથમાંથી પ્યાલા પડી ગયા તોય આપણે કહેવાનું એવું દાદા શીખવાડે છે. શું શીખવાડે છે? કે આ પ્યાલા પડી ગયા તો આપણે શું કહેવાનું? ભાઈ તું દાજ્યો તો નથી ને? હવે આપણે નોકરની માં જવા દો, આપણે આપણા ઘરમાં જ હસબન્ડ વાઈફ છોકરા કે જે કોઈ આપણા ઘરમાં વ્યવહાર પ્રેક્ટિકલ થયો છે? નથી થયો તેને ભૂલ કહેવાય કે નહીં? આ તો ખાલી કહું મારે હું ભૂલવાળો છું પાછો વાત કરું છું. એટલે એટલે હું શું કહું છું કે જ્ઞાનીનો એક સિમ્પલ શબ્દ પણ આપણે ચૂકી જઈએ છીએ, તેનો ખટકો રહે છે, એનું પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. એ દાદા ભગવાન આટલી નાની વાત હતી તે પણ હું મારા જીવનમાં મેં પ્રેક્ટિકલ કરી નથી. કશું થાય છે ને તો ધડાકાન ભડાકા જ થાય છે. આ મને નબળાઈ છે મારી, મને છૂટવું છે આનાથી. નબળાઈ કહેવાય. શું કહેવાય? આ તો એક તમને કહો, હવે કેટલી બધી હોય આપણા સત્સંગમાં. જો મને મારી નબળાઈ દેખાશે ને તો તમને ઢગલે પણ કહી દઈશ, જો આને નબળાઈ કહેવાય, જો આને ભૂલ કહેવાય, જો આને ભૂલ કહેવાય. પણ એ દેખાય તો તમને કહી શકું, નહીં તો ના કહી શકું. પછી બાધા ભરે. કેવું હોય? ખૂણે ખૂણે જાગૃતિ જોઈએ. કેવી જોઈએ? અને જાગૃતિ હશે તો બધું દેખાશે. જાગૃતિ એ શુદ્ધાત્મા છે. શું છે? સમજ્યા? બોલો તમારે કેમનું છે? બધાને આવી ગયું આમાં જ કે કશું વાત કરવાની છે? બહેરો કોઈ બોલતા નથી. હે, हाँ बोलो. बहुत अच्छा लगा कि अखंड जागृति होनी चाहिए। और हमने पास्ट में क्रमिक मार्ग में ऐसा ही सुना था कि द्वैत का धुआं भी नहीं, मतलब रिलेटिव का धुआं भी नहीं, और अद्वैत की आग, मतलब जो रियल आत्मा है उसकी आग हमेशा जलती रहे, और उसको अगर जलाया भी जाए तो उसकी राख नहीं बचे। तो ये प्रिय थे सेंटेंस, पर आज आपने बताया ना जो उस प्रयोग, बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो जागृति का भाव तो है, ऐसी जागृति अखंड रहे, तो उसके लिए क्या प्रार्थना क्या यानी रहती नहीं? यानी रोज़ प्रार्थना करते हैं कि एटलीस्ट हमारे 24 घंटे में 7 घंटा तो रियल में जाना चाहिए, हार्डली 5 या 10 मिनट्स जाता है, फिर यानी जाके
तो वो कचाश से कैसे ओवरकम करें? देखो, ज़्यादा तक दादा भगवान ने क्या बोला कि ये जितना भी कचरा पड़ा है ना, वो कचरा जब तक पड़ा है तब तक वो आपको जागृति कम रहेगी। तो जब भी आपको कोई गलती खुद की दिखे तो उतना उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। जितना प्रतिक्रमण करोगे, जितना वो ज्ञान से उसका सॉल्यूशन लेते जाओगे, तो धीरे धीरे वो जागृति बढ़ती जाएगी। ओके। मैं आपको बता दूं कैसे। हम्म, समझो मैंने किसी का व्यवहार देखा हम्म, और अंदर परिणाम खड़े हो गए हम्म, नेगेटिव। हम्म, मैं उस समय जैसे खड़े होते हैं तो दादा की कृपा से जागृति आती है। हम्म, जागृति आती है तो फिर मैं रिलेटिव रियल देख के प्रतिक्रमण करके एक बार सॉल्व कर देता हूँ। हम्म, फिर जब दूसरी बार ऐसा होता है हम्म, तो एक दूसरा विजन खिलता है तो कि ये किसने मिलाया आपको, तो व्यवस्थित ने मिलाया। हम्म, तो वो कौन है? वो तो शुद्धात्मा है। तो भी वो शुद्धात्मा है, व्यवस्थित करता है, तो वो आपके साथ कैसे मिल गया आपको? तो आपने जरूर कुछ गलती की होगी, नहीं तो आज आपके सामने ये चीज़ होती नहीं। आप समझे? या तो धीरे धीरे जैसे प्रतिक्रमण करते जाते हैं, ज्ञान से सॉल्यूशन लाते जाते हैं, शक्ति मांगते हैं, तो धीरे धीरे वो विजन एकदम एक्यूरेट होता जाता है। क्या है? एक्यूरेट हो जाता है। जैसे एक बच्चा 1 to 10 लिखता है, हम्म, फिर उसको बराबर पक्का फिट हो जाता है, फिर वो प्लस माइनस सीखता है। ऐसे करते करते फिर एक एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ता जाता है। Yeah. आपको समझ में आया? ऐसे ये प्रोसेस है। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि हमारा व्यवहार बाहर से नहीं है, ए का डील बी से नहीं है, लेकिन रिलेटिव और रियल के बीच में लड़ाई है। मतलब यानी जैसे बोलते हैं ना 5 विषय होता है, शब्द स्पर्श। तो हमारे लगता है कि जो हमारा ना डिजाइनिंग में ज़्यादा जाता है, कपड़े की डिजाइनिंग में, हालांकि ज़रूरत नहीं है। वो समय हम रियल में लगा सकते हैं, लेकिन एनर्जी फिर भी वहाँ चली जाती है। तो लगता है कि दादा वो ये है ना, वैसे भी वहाँ तीर्थंकर के यहाँ तो कपड़े वगैरह का है नहीं, तो ये जन्म में बीज को ख़त्म कर दो, जो डिजाइन में या कलर में कॉन्ट्रास्ट में बार बार चली जाती है। तो दादा भगवान इतनी कृपा करो कि ये जन्म में बीज हमारा ख़त्म हो जाए, जो अट्रैक्शन डिजाइन और इसमें नहीं जाए। तो फिर भी दुख होता है कि इतना समय चला जाता है लगातार। जब तक आपने बोला डिवैल्यूएशन नहीं होएगी तब तक अंदर का सुख नहीं आएगा। बस जहाँ ही हमारा ए और बी, रिलेटिव और रियल की लड़ाई चलती रहती है। देखो, दादा भगवान ने बताया जितना स्टॉक है अंदर पड़ा हुआ है वो निकल रहा है, वो जब निकलेगा तो उनके पर हमारा उपयोग होगा, जागृति होगी, पुरुषार्थ करेंगे तो इतना क्लीन होता जाएगा। आपको समझ में आया? निकलने टाइम टाइम समझो तो लगेगा। नहीं, ड्यूरेशन समझो 4 घंटा या 4 जन्म है, 40 जन्म है। तो निकलने टाइम हमारा वो रिलेटिव का पैरेलल, रिलेटिव का पक्ष भी उतना स्ट्रांग बना रहे, उसके लिए क्या जागृति? जुदा बनने की जागृति या कोई और भी प्रयोग? मतलब यानी बरेलो माल निकलता है वो रिलेटिव का निकलता है, और जो रियल में हमारा जागृति रहे, जुदा बने, तो वो हमेशा उसकी साथ साथ में उसकी पुरुषार्थ के लिए क्या क्या है, शक्तियां हैं या जुदा बनने की जागृति है या कोई और भी प्रयोग है जो रियल की अखंड जागृति? वो क्या है कि वो पहले अपने को 5 आज्ञा में रहने की शक्ति मांगनी पड़ती है। ओके, बराबर? बराबर। फिर 5 आज्ञा की शक्ति मांगने के साथ साथ में अवकाश मिले तो अपने को अभ्यास करना होता है। ओके, जैसे घर में हो, यहीं हो, तो सामान्य भाव से कि भाई बाहर का पैकिंग है, अंदर शुद्धात्मा है। आप समझे ना? हाँ, तो ऐसे जो आज्ञा है, तो पहले आज्ञा दादा भगवान ने बताया कि आज्ञा शब्द नहीं है, हाँ, आज्ञा को उसको समझना है ओके, कि ज्ञानी पुरुष रिलेटिव किसको कहते हैं, रियल क्या चीज़ है, फाइल व्यवस्थित कौन करता है, कैसे व्यवस्थित है, वो हमें समझना चाहिए जितनी ज़रूरत है जितनी। वो 5 आज्ञा समझ के बाद आपका एप्लीकेशन हो सकता है। ओके, हम पहले आज्ञा समझने के लिए, इसीलिए ज्ञान देने के बाद दादा भगवान एक शब्द बोलते थे,
कि आज आप शुद्धात्मा हो गए, हम्म, कल आप आना, कुछ भी गड़बड़ हुई होगी हम्म, तो मैं रिपेयर कर दूंगा। अच्छा। हमारी गड़बड़ यहाँ होती है जब भी बोलते हैं ना कि शुद्धात्मा के सिवाय कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो मन बोलता है चीटिंग चीटिंग चीटिंग, सब तो चाहिए। और ये चीटिंग कैसे कि शुद्धात्मा के सिवाय, हाँ शुद्धात्मा तो लक्ष्य है, उसके लिए जंखना भी है, लेकिन जो रिलेटिव की चीज़ों संग्रह करते हैं छूटती नहीं, तो वो चीटिंग लगता है कि ऐसे बोलने नहीं देता है बुद्धि। देखो, शुद्धात्मा अनुभव सिवाय कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, वो डिपार्टमेंट अलग है। ओके। और ये शरीर को तो खाना पीना सब चाहिए ना, कपड़े बपड़े सब, या बराबर ना। या तो अपने को क्या है, उसको जानने का है, ओके आपको देखने का है, ओके बराबर। बराबर। और जहाँ भी अपने को धीरे धीरे उनको क्या बोलते हैं कि जब आपको खुद का सुख अंदर से आने लगेगा, हाँ खुद का, तो बाहर की जो चीज़ है हाँ, वो धीरे धीरे अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। बस उसका ही इंतजार है, वो कब घड़ी आएगी जो अपना स्व का वो सब। वो सुख के कारण है। और ओके। दूसरा, आपने जो अंदर एक बार बिलीफ में रखा है, स्टॉक किया है कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए, तो वो तो अभी समय आने पर निकलेगा ही, क्योंकि ये तो ओके कुदरत का काम है। ओके। हाँ अपने पूर्वभव में जो किया है वो तो निकलने वाला है। हाँ लेकिन इसमें होता क्या है कि जितना सुख खुद को आएगा, जितनी समझ आती जाएगी, या तो उसमें से सुख कम होता जाएगा, ओके। फीका पड़ता जाएगा। हाँ, ऐसे भी अनुभव होते हैं। समझ में आया? या छूटता जैसे भले आज नहीं। मेरा ये कपड़ा है, हम्म, तो ये 2-3 जोड़ी कपड़ा मैं क्यों रखता हूँ? हम्म, तो कि भाई जरा संग में जाने का है, इधर तो लोगों को लगेगा यार कैसे कपड़े अच्छे पहनते नहीं है, हम्म, इसीलिए पहनता हूँ। हम्म, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, जब फटा हुआ हो तो उसको ऐसा सिलाई करके पहन के घूमता हूँ। मेरी कोई भी पुण्य मुझे कहीं भी खर्च नहीं करनी है। हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी पूर्णाहुति करनी है। क्या करना है? पूर्णावती करनी है। और कुदरत का भी ऐसा लॉ है कि पूर्वभव हम्म, में जो मैंने गलती की थी अशोक भाई, तो मुझे चंपल नई नहीं चाहिए, मैं पुराना पहनता हूँ, तो बोले नहीं ये निकाल दो, अभी यही पहनना है। तो 2-3 आदमी ने इतना फोर्स किया मुझे कि ये फेंक दो। अरे भाई अभी तो चले ऐसा है। बोला, नहीं, अभी नया पहनो। आपको समझ में आया? समझ में आया? हाँ समझ में आया। जितना सुख बढ़ता जाएगा तो हाँ बाहर से फीका लगेगा, बाहर हाँ की जो रिलेटिव चीज़ है वो फीकी लगेगी। हाँ। एक भाई ऐसे भी है कि कर्मिक मार्ग में हमने जैसे बोलते हैं त्याग करना है, वैराग करना है, तो चीज़ों को जैसे कपड़ों को वाइट कपड़ा पहनने का है, या टीन एज में जो सब रंगीन पकावे टीन एज में, तो दादा भगवान का ज्ञान मिला तो लगा कि वो बीज है ना सप्रेस नहीं हो जाए। सप्रेस होता है तो बाद में निकल आता है, तो हमारा वो बीज खत्म हो गए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ये अंदर बीज में नहीं होना चाहिए। कुछ भी चीज़ नहीं है, जैसे अभी स्त्री प्रकृति में तो सिर्फ सिंपल नहीं, एक 3 चीज़ें हैं, वो साड़ी भी चाहिए, फिर मैचिंग भी चाहिए, फिर सिल्वर भी चाहिए, गोल्ड, मतलब इतना फैलाव है। जो તમને શું થશે ટૂંકમાં જાણી લો। हाँ પહેલો પોઈન્ટ, હું શુદ્ધાત્મા છું। बराबर। બીજો પોઈન્ટ, અંદર ભરેલો માલ છે એ हाँ નીકળવાનો છે। ओके। અને ત્રીજો પોઈન્ટ એવો છે કે જો તમને જાગૃતિ હશે हाँ તો તમને એમાંથી સુખ આવતું ઓછું થતું ઓછું જશે, એટલે થતું ફીક્કું જાય, લાગશે, ફીકું લાગશે। हाँ બરાબર। बराबर। એનાથી આગળનું શું છે તો કે આ તમારું જે પરિગ્રહ જેટલો ઓછો થતો જશે, हाँ हाँ એટલે કે જેમ કપડાં વસ્તુની જે ચીજની हाँ રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી થતી જશે, તો ધીરે ધીરે તમને તમારામાં રહેવાનું તમને વધારે ને વધારે हाँ અંદર પુરુષાર્થ થતા જશે। ओके। જેટલું બહાર વધારે હશે એટલું हाँ તમારું ચિત્ત, તમારું મન, राइट। अंतस्करण બધું અંદર બધું વિખરાયેલું હશે। શું હશે? या राइट राइट। जब भी आप खोलोगे, बोले ये कहाँ गया, हाँ हाँ ये किधर गया है, किसने इधर देखा, वो सब प्रॉब्लम आएगा। वेरी ट्रू। और 2-3 जितना परिग्रह कम होगा इतना सुख आपको ज़्यादा लगेगा, वेरी आप इतने फ्री होते जाओगे। वेरी ट्रू। ये सिस्टम है, या वेरी लेकिन कम नहीं करना है, वो अपने आप होता जाएगा। ओके ओके। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया कि ये पंखा है ना, उसको पकड़ के बंद नहीं करने का है, ओके। उसकी स्विच जो है रे वो ऑफ कर दो,
फिर वो धीरे 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 अपने आप बंद हो जाएगा। ओके। समझ में आया? हाँ, या मतलब उसमें जुदापने की जागृति, हाँ, या बहुत अच्छा, बहुत सारा डीप है। मतलब अपने को वो चीज समझने की है हाँ, हाँ, कि मैं अनंत सुख वाला हूँ। हाँ, प्रदीप भाई, आपको कैसे इसमें सुख लगा? हाँ, मुझे बताओ। या हाँ, आपको कौन देखता है? हाँ, किसने बोला आपका जूते बहुत अच्छे हैं? हाँ, सब में शुद्धात्मा देखो। हाँ, ट्रू, आपको समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल क्यों देता हूँ हाँ, कि अपने को अपने परिवार के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो भी है उसको चलने दो, लेकिन अंदर जागृति रखो। या मन को बताते हैं जितना रिलेटिव में प्रीत है वो देंगे जवाब। ये महेश भाई साहब अभी जवाब देंगे। लो अच्छा। अगर किसी और को पूछना है तो पहले प्लीज। 10 मिनट बचा, चालू कर दे। तो समझ में आया ना थोड़ी बात? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ी बात करो, मेरा ऐसे टाइम पूरा हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जैसे दादा भगवान बोलते हैं चारित्र मोह। अभी दरअसल मोह रहा नहीं अपना, चारित्र मोह जो निकलने वाला है, निकल रहा है, डिस्चार्ज मोह बोलते हैं। तो ये कपड़े, रंग, मैचिंग जो भी है वो चारित्र मोह बोलते हैं। उसमें लगाव नहीं रहता है, और ये कपड़े मिले तो ही ओके, नहीं मिले तो उसके लिए खींच भी नहीं रहती, और गुम हो गए, चोरी हो गए, फट गए तो उसके लिए आप वो उसको याद भी नहीं करते, याद भी नहीं करते। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन चोर ले गए, कैसे फट गए, तो उसके लिए अटैचमेंट नहीं रहता है। तो जो भी पहनो करो, मगर उसके पास उसके लिए कुछ वो आसक्ति नहीं रहती है। तो वो बढ़ा कि महात्मा को जो शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ, तो बाहर का जो भाग होता है वो जैसे चारित्र मोह लेके आए हैं। चारित्र मोह यानी कि चार्ज वाला नहीं, डिस्चार्ज वाला। तो उसको देखना है, जानना है कि भाई ये चंद्राबेन ने आपका नाम, या हाँ, चंद्राबेन को हो रहा है। उनका जो चंद्राबेन जो लेके आई है कलर मैचिंग, तो चंद्राबेन को बोलना है कि अभी क्या तेरे को मैचिंग करना है, क्या ये है जो है संभाव से निकाल करना है। इनके एक शब्द दादा वापस मूर्छा, मूर्छा चली गई कि कुछ भी हुआ, गुम हुआ, चोरी हुआ, उसके लिए मूर्छा नहीं थी। रिंग भी है, रिंग पहनते, डायमंड की रिंग पहनते थे दादा भगवान, डायमंड की, मगर कोई निकाल दे कि गुम हो गई तो उसके लिए कुछ भी मूर्छा नहीं रहती। कपड़ा भी भर बाजार में पूरे के पूरे कपड़ा निकाल दे कोई, तो भी दादा भगवान के जो मुखारविंद पे कुछ भी असर नहीं होती। ऐसे खुद बोलते थे दादा भगवान, अपने ऐसे नहीं हुए, मगर क्या बोलता हूँ कि दादा भगवान ने बताया आपकी मूर्छा गई ने, तो वस्तु का त्याग करना नहीं है, वस्तु के पीछे आसक्ति है, मूर्छा है, वो त्याग हो गया बस। तो त्याग आपने बोला ना, वो त्याग करो, ये त्याग करो, मैचिंग का त्याग करो। कितना त्याग करेंगे आप, कितनी चीज़ों का त्याग करेंगे, उसकी मूर्छा को निकल गई तो त्याग ही समझो, ये दादा भगवान बताते थे। तो ये कुछ भी होता है चंद्राबेन को, तो हमें उसको देखना है, चंद्राबेन को से बातचीत करना है, और प्रतिक्रमण भी कराना है। चारित्र मोह है मगर प्रतिक्रमण तो कराना है ना, क्योंकि अपना शुद्धात्मा का सुख चला गया वो चारित्र मोह में। किसी को टीवी देखते ने, मूवी देखते, क्रिकेट की मैच देखते, कुछ भी अंदर सीरियल देखते, जैसे जिसका इंटरेस्ट, वो चारित्र मोह बोला, मगर हमें अपना टाइम तो बर्बाद हुआ। हाँ, पैरामीटर अपने को देखते हैं तो लगता है कि अभी हमारा श्वास जाए,
तो क्या फीलिंग आएगी? एक तरफ कपड़े और एक तरफ आत्मा, दादा ने बोला है काम काढ़ी लो, हाँ तो रोना आएगा कि लाइफ तो गाँव गवा दी, काम तो काढ़ी नहीं लिया। तो वो पैरामीटर प्रतिक्रमण, उस पे आपने बोला ना कि पंच लाइन, हम्म। वो प्रतिक्रमण कैसे करें, वो थोड़ा और उसको एलेबरेट करें। प्रदीपानंद ने बोला ना, एक खटका रहना चाहिए। स्वामीनारायण भगवान ने भी क्या बोला कि खुद की भूल का खटका। खटका यानी क्या? वो प्रतिक्रमण जैसा ही है। तो स्वामीनारायण भगवान ने उनको जो सत्संगी थे ने, कि उसके लिए ये शब्द वापरा था कि कोई भी भूल हो जावे तो अंदर हृदय में यानी कि दिल से वो भूल फिर से न हो, वो उसको खटका बोलते। कि अंदर खेद होना, यानी कि वो उसके लिए अपने दादा भगवान प्रतिक्रमण बोलते हैं। तो भूल होती है, वो भूल नहीं है। और भूल का हम प्रतिक्रमण नहीं करते, भूल का उपराणा लेते, प्रोटेक्ट करते, वो भूल है। इसलिए ये सब चारित्र में जो निकल रहा है, वो उसमें हमें खटका नहीं रहता है, यानी कि प्रतिक्रमण नहीं करते, वो बड़ी भूल है। या हाँ, शुद्धात्मा का उपयोग नहीं रहता है। हाँ। रिलेटिव रियल हमने देखना है, हाँ। और हमें वो उसमें आलस, प्रमाद, जो भी अजागृति, जो भी कुछ आ गया चारित्रमों में, यानी कि विचार में, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, तो आ जाएगा। मगर हम वो गलत नहीं आ गया, मगर ये नहीं होना चाहिए। हे दादा भगवान, आ गया तो आ गया, मगर दैट इज नॉट राइट, करेक्शन करना है, दैट इज रॉन्ग। हम तो रिलेटिव देखने गए हैं, उसके पुरुषार्थ में हम टाइम निकालते हैं, वो पुरुषार्थ है। टाइम निकालना रिलेटिव देखने जाने के लिए, या असीम जी का कि कीर्तन भक्ति जाने के लिए, करने के लिए, विधि करने के लिए, सत्संग में आने के लिए, सब पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव रियल पुरुषार्थ, रियल में ले जाने वाले पुरुषार्थ। मगर वो पुरुषार्थ करते करते वहाँ आलस, प्रमाद के कोई भी वो भूल हो जाती है, वो भूल नहीं है। मगर होने के बाद इतना खटका नहीं रहता है, हमें प्रतिक्रमण नहीं होता है, हाँ। और हमारा अंदर जो भूल हो गई उसका खेद, यानी कि उसका प्रतिक्रमण के करने का जो उत्साह होना चाहिए, यानी कि सिंसियरिटी होनी चाहिए। या नहीं तो नेगेटिव क्या होगा? तो उसमें क्या दिक्कत है? उपयोग पूर्वक कीर्तन भक्ति नहीं बोलाई गई कि रिलेटिव रियल नहीं देखा, तो कुछ कुछ वादा नहीं कि भूल का प्रोटेक्शन किया, ये नहीं चलेगा। ये फाइल नंबर 1 के साथ बातचीत करने की कि आपको शुद्ध उपयोग की प्राप्ति दादा भगवान की कृपा से हुई है, तो शुद्ध उपयोग में रहने का हमारा पुरुषार्थ निश्चय, वो दादा के पास शक्ति भी मांगना है, हमें उसमें सिंसियर रहना है। ऐसे बातचीत का प्रयोग चंद्राबेन से, मैं महेश भाई से करूं, ये अभी नहीं चलेगा, ये पोल नहीं चलेगा। जो बात करते थे ना प्रदीपानंद जी, कि अभी दादा भगवान का ऐसे ज्ञान मिला तो मन चले तो तन नहीं चलना चाहिए। मन का चले तन चले तो सर्वनाश हो जाए, कबीराज ने बताया। तो दादा भगवान ये कबीर जी की बात करते थे कि मन तो ऐसे विचार करेगी, ये ले लूँ, ये वो लूँ, ये भोग लूँ, वो ये महोत्सव कर लूँ। तो दादाजी बोलते मन का चल का तन चला, जो कबीरा ने बोला। तो इसलिए मन का कब सुनने का? दादा भगवान की जब बात है, उनका देह है, 5 आज्ञा है, उनकी भक्ति है, कि दादा भगवान ने बताया है करने की चीज़ है, दैट इज रॉन्ग के राइट। जो रॉन्ग है प्रज्ञा बताती है, शुद्धात्मा की शक्ति, दिस इज इनकरेक्ट, तो भी हम सुनते हैं कि नहीं? हाँ, तो दादा भगवान वही बोलते थे कि पराक्रम करना है। प्रतिक्रमण तो है, पराक्रम यानी कि अभी मन जो भी हो जावे, अगर गलत बात जो मन बतावे, उसको हम कहाँ रुक जाते, वो गलत बात में सपोर्ट दे जाते, कहाँ मेरी वीकनेस, कहाँ वो खींच जाती है मन अपने को। तो जैसे आप बाज़ार में गए, कुछ साड़ी की दुकान देखी, ड्रेस की दुकान देखी,
मगर अपना चित उधर, एग्जाम्पल दादा भगवान देते थे भी, ले नहीं सके कि कुछ गोल्ड है, डायमंड है, जैसे जैसी प्रकृति। तो घर पे आए तो अपना चित कहाँ घूम गया, वो डायमंड में, वो साड़ी में, ड्रेस में, वो चीज़ नहीं मिली, पैसा नहीं, संजोग नहीं, तो अपना चित उधर ही जाता है, उधर ही जाता है। तो वहाँ बोलते अटकण बोलते, वहाँ अटक जाते। तो ये वहाँ चित अपना जहाँ वो अटैच होता है वो चीज़ के लिए, व्यक्ति के लिए, मान के लिए, लोभ के लिए, विषय आसक्ति के लिए, जो भी है सब, ये तो एग्जाम्पल है साड़ी का, डायमंड का। तो जहाँ जहाँ अपना चित चिटक जाता है वहाँ वो अटकन बोलते हैं, यानी कि अटक जाते। फिर ज्ञान व्यान कुछ याद रहता नहीं है। जैसे भूख लगी, कुछ नहीं, जो रोटी याद आती है, भूख लगे तो ज्ञान रहता है। इस तरह चित्त वहाँ गया तो ज्ञान वैर विखेर, चित्त वैर विखेर हो जाता है। हाँ, और सबसे अंतस्करण में जो इम्पोर्टेंस है ज्ञान का, हाँ, वो ज्ञान दर्शन, वो चित्त की शुद्धि होती है। जैसा चित्त ऐसा शुद्धिकरण की ये पूरी विज्ञान और शुद्ध चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। चित्त की अशुद्धि यानी कि गलती, वहाँ चिटक गए आप, तो चित्त की अशुद्धि हुई कि ना हुई? हाँ, तो भूल है। मगर कौन सी भूल? आप चीट के वो भूल नहीं है, मगर आपको ऐसा लगता है मैंने किया, अच्छा किया, मैंने क्या गलती की, वो तो चिट का। तो दादा भगवान तो ये चिट का वो गलती नहीं है, मगर चिटकने बाद आपको प्रतिक्रमण नहीं करते, ये गलती है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। अभी आपने और बोला प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सुना है, लेकिन आपने प्रतिक्रमण और पराक्रम शब्द यूज किया। पराक्रम को क्या थोड़ा और समझाएंगे? पराक्रम किसको बोलते हैं? पराक्रम उसको बोलते हैं, प्रतिक्रमण तो जरूरी है, मगर पराक्रम ऐसे उसको बोलते हैं कि कुछ भी हो ऐसी गलती, ये अहंकार करके भी, ये विषय विकार में शब्द वापरा था, और भी वापरते, वहाँ चीज चिचक जाता है ऐसे मोह बाजार में, कि जो भी है पुजाने की कामना होती है कि मुझे सब लोग मेरी वाह वाह हो, जो भी है, कुछ भी नबड़ाई है, किसी को चोरी की आदत है, नहीं होती है, चलो होती है। दूसरे की चीज़ मैं ले लूँ, अणहक का लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, किस तरह से मैं अच्छी अच्छी बात करूँ और मुझे वो पैसा मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे। वो सब अणहक की चीज़ की बात है। हाँ, वो जो लक्ष्मी और विषय विकार की बात करते थे दादा भगवान, ये दोनों चीज में अणहक हो गया, खुद का नहीं, तो उसके लिए पराक्रम बोलते हैं कि कुछ भी हो जावे, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। पराक्रम यानी कि वो अहंकार करके भी हाँ, उससे हम टच न करें विषय हाँ। विकार और लक्ष्मी को। हाँ, प्रतिक्रमण तो टच होने के बाद हम करते, पैसा अपने पास दूसरे का आ गया कि विषय विकार विचार भी आ गया, तो प्रतिक्रमण। तो ये पराक्रम यानी कि दादा भगवान के से प्रतिक्रमण करते करते पराक्रम यानी कि बड़ा पराक्रम यानी कि महान पुरुषार्थ। तो क्या महान पुरुषार्थ? अभी कुछ भी ये देह गिर जावे, कट जावे, जो भी है, ये पार से वो पार, मैं दादा भगवान को नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, मैं नहीं छोड़ू। गाते ना हम इस तरह से, दादा भगवान ने जो बताया उसको मैं नहीं छोड़ू, वो गलती को नहीं होने दूँ किसी भी तरह से। ये अणहक की लक्ष्मी और अणहक का विषय मैं नहीं भोगू, मेरा हक नहीं उसमें, उसमें पराक्रम बोला था। समझ में आए? हाँ, कहाँ इतना मन का लालच, चित्त का लालच, बुद्धि का लालच, अंतस्करण बहुत ये लालच से भरा हुआ है, और अंदर इतना मोह ऐसे खड़ा हो गया, ललचाने के अंदर सब संजोग आ गए। मगर ये देह भी कट जावे, तो भी कुछ भी हो जावे, तो उसको ये अहंकार से मेरा मन जो गलत बताता है,
बुद्धि गलत बताए, मैं उसका नहीं सुनूं, कुछ भी हो जाए, वो पराक्रम बोलते हैं। या हम फाइल नंबर 1 के द कैसे पुरुषार्थ होता है, कैन आई शेयर कि कहाँ गलती जा रही है या राइट है। जैसे ज़्यादा जाता है मन तो शुद्धात्मा से माफ़ी प्रतिक्रमण करते हैं कि जो रियल स्वरूप आत्मा का है उसको कवर जन्मों से कवर करके रिलेटिव के पक्ष में कितना अभी भी है, तो प्रतिक्रमण शुद्धात्मा प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण और आपका सतत स्मरण मेरे को याद रहे, तो वो करते हैं, उसे शुद्धात्मा से प्रार्थना करते हैं। दूसरा शुद्धात्मा का दादा का जो 3 शब्द है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, तो बार बार वो चैंटिंग की तरह करते हैं। और तीसरा यानी चित्त जहाँ चारित्र मोह में जाता है तो जानबूझ के दादा भगवान का निध्यासन करते हैं सिमंदर स्वामी का, और उसको देख के बोलते हैं अनंत शक्ति वाला, ताकि चित्तवृत्ति में वो वाइप ऑफ होके चित्त में दादा भगवान का निध्यासन हो। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ठीक है यानी कि ये इसमें ठीक है, मगर अपने जो दादा भगवान की 5 आज्ञा है ओके उसमें सब आ जाता है ओके कि भाई बाहर निकलो तो व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, ओके कहाँ कहाँ शुद्धात्मा मैं ढूंढूं। ओके शुद्धात्मा दिखने वाला नहीं है, दिखाई हाँ। देगा नहीं, वही नहीं दिखता है, इसके लिए चुप वो ढूंढना पड़ता है। ओके दादा भगवान का वर्ष है, शुद्धात्मा ढूंढो, ओके खोजो, ओके अपने आप दिखाई नहीं देगी, ओके क्योंकि अपना भरेला माल वो बीच में आता है ना। हाँ कितना हाँ ट्रैफिक है, तो हाँ। सामने बस इतनी डबल डेकर सब एग्जांपल देते हैं, तो सामने दिखता नहीं है कौन कौन जाते हैं। हाँ ऐसे ट्रैफिक वाला है अपना पूरा भरेला माल, राइट तो शुद्धात्मा दिखेगा नहीं। नहीं अपने पुरुषार्थ उपयोग की गोठवनी करनी पड़ती है। जो आपने 2-3 चीज़ अच्छी बताई, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो करते रहो, मगर मेन चीज़ ये है 5 हाँ। आज्ञा, 5 आ गया वो उसमें डेप्थ में जाओ, ओके और वो मन को समझाने का, फाइल नंबर 1 के साथ बातचीत करने की, कि वो कहाँ कहाँ ये दिखाई देता है, नहीं दिखा देता है शुद्धात्मा, तो चंद्राबेन को बोलना है, मैं महेश भाई को बोलूँ, आप क्या करते, क्या देखते, क्या सोचते, हाँ कहाँ कहाँ आपका चित्त भटकता है, हाँ खाने में, बैठने में, उठने में, सोने में, सबकी प्रकृति देखने में, शुद्धात्मा कहाँ गुम हो जाता है तेरा देखने का। ऐसा चंद्राबेन को मैं बोलने का, आपको मैं महेश भाई को बोलूँ। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा यही जब भी शिविर आने से पहले यही क्वेश्चन था कि अभी भी कितने 40 साल हो गए कि आत्मा की जंखना के लिए कि आत्म अनुभव हो, और जो आत्मा के गुण बोलते भी हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, पर फिर भी अनुभव में नहीं आता है, लगता है कि जैसे उस पर इम्पोज कर रहे हैं। रिलेटिव में कोई इंसल्ट करे तो कितना तन्मयकार हो जाते हैं, और आत्मा के जो गुण बोलते हैं तन्मयकार नहीं होते, जैसे लगता है उस पर इम्पोज कर रहे हैं। तो अभी भी लगता है कि ऊपर नैरो, मतलब ये नहीं ऊपर शैलो है, वो रिलेटिव का पार्ट अभी भी डीप है, कि उसकी जो अनुभव डीप है, इसका अनुभव थोड़ा ऊपर लेवल पे क्योंकि इम्पोज कर रहे हैं तो कच्चा है चाहिए। ये अपने अनंत काल का जो स्टॉक है, अनंत अवतार को, पुद्गल को इम्पोर्टेंस दिया है, हाँ यही इसलिए अनंत काल से, अनंत जन्मों से मैं ही चंद्राबेन हूँ, मैं ही हाँ। करने वाला हूँ, वो करने वाले हैं। ऐसा ही कितने अवतारों से ऐसी ही बिलीफ लेके आए, उसका हाँ। भार ज़्यादा है, या, पुद्गल का भार ज़्यादा है, या, वो पुद्गल की शक्ति भी ज़्यादा है, या, और आत्मा की भी शक्ति अनंत है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पुद्गल को कम मत समझो, वो भी अनंत शक्ति वाला पुद्गल है, उसका भार भी बहुत है भरेला माल का। हाँ। पुद्गल को भी कम मत समझो, पुद्गल को तो पावर हमको वो फुसला भी देता है ना, पुद्गल पर परमाणु, रियल का पावर अभी भी परख नहीं आता। हाँ दोनों की शक्ति है, ऐसा हाँ। मैं बोलता हूँ। हाँ, किसी हाँ। को कम मत समझो, हाँ। आत्मा की अनंत शक्ति है, उसको तो ज्ञान मिला है, पर हाँ। कभी कभी क्या है, ये अपने प्रकृति पे ऐसा कमजोर समझते, वो भी बहुत भारी है, वो कहाँ झोंका, दगा फटका, कहाँ गिरा देगी आपको, हाँ वो भूल कर आएगी, हाँ उसके पे विश्वास मत रखो। हाँ विश्वास हम कहाँ रखते हैं, दूसरे पे नहीं रखते, सगे संबंधी जो भी मित्र दोस्त सारे, वो
सासू है, बहू है, बच्चे हैं, आड़ोसी पड़ोसी है, मामा चाचा सब आ गए, फ्रेंड सर्कल, उसके पे हम विश्वास नहीं रखते। हाँ, मेरी जात पे विश्वास बहुत रखते हाँ, कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मेरे से कुछ गलती नहीं होने वाली है, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, हाँ, मैं और हाँ, कुछ ગુજરાતી में બોલતે ને બધા હું ગાંડો નથી, બીજા બધા ગાંડા છે, હું ડાયો છું, हाँ, સારો છું, या, मैं अच्छा हूँ, या, मेरे में गांडपन नहीं है, मैं मेंटल नहीं हूँ। हाँ, ऐसा लगता है मैं मेंटल हूँ नहीं, खुद को, नहीं, और दूसरे कुछ ऐसा ऐसा करे, अरे गांडा જેવું વર્તન કરે છે, हाँ, ગાંડો છે કે શું, या, મેન્ટલ છે। हाँ, એટલે પોતાની જાત પર આપણને વિશ્વાસ એટલો બધો અનાદિકાળથી બેસી ગયો છે ને basically, right, કે હું ખોટું સહેજ Yeah. પણ કરી શકું નહીં, हाँ, બીજા બધા જ ગાળા કાઢે છે, ખોટું કરે છે। એટલે દાદા ભગવાન કહે છે કે પોતા પર વિશ્વાસ મૂકવા જેવો નથી। right, ક્યારે ગાળા કાઢે, ગેલા કરે, નફટાઈ કરે, ક્યારે દાનતખોરી, ચોરી, લુચ્ચાઈ, વિષય, વિકાર બધું જ અંદર ભરેલો માલમાં પડેલું જ છે। हाँ, એટલે ચેતતા રહેવાનું કોનાથી છે? हाँ, ગુજરાતી તો સમજમાં आता है हाँ, ને? हाँ, समझ गए, કોનાથી ચેતતા રહેવાનું છે? Final. પોતાની જાત, हाँ, પોતાના મન, પોતાની બુદ્ધિ, પોતાનો ચિત્ત, પોતાનો ડિસ્ચાર્જ, અહંકાર। हाँ, એટલે આપણે બીજાથી ચેતે, જો ભાઈ પેલાથી સાચો છે, પેલા બેને આવું કરેલું, પેલા ભાઈએ આવું કરેલું, ને હા. આ વખત તો બરાબર સાચવીને બધું हाँ, આપણું પર્સ ને આ એ વ્યવહાર છે, પર્સ સાચવીએ પૈસા, हाँ, પણ પોતાની જાત પર જે વિશ્વાસ, અંધવિશ્વાસ બેસી ગયો છે, हाँ, આંધળો વિશ્વાસ हाँ, કે હવે મારાથી ભૂલ, મારે કંઈ પ્રતિક્રમણ કરવાની જરૂર નથી, ભૂલ થતી નથી, હું તો ઉપયોગમાં જ રહું છું। हाँ, હવે આપણે જાતને પૂછીએ, ભાઈ તું કેટલા શુદ્ધાત્મા જોયા, हाँ, કેટલો ઉપયોગમાં રહ્યો, हाँ, તું તો સત્સંગમાં આવ્યો કમાણી કરવા માટે, તે हाँ, કમાણી કરી કે નિંદા કોટલી કરી, એ બીજું ત્રીજું કર્યું, એ કહીએ છે? આ શિબિરમાં શેના માટે આવવાનું? हाँ, વધારે આજ્ઞા પાડવા માટે, વધારે ભૂલો જોવા માટે, हाँ, જાગૃતિ વધારવા માટે, हाँ, એ ખાવા પીવા માટે, સુવા માટે આવવાનું? नहीं, હા, થોડો આરામ કરી લો, કલાક અડધો હા, કલાક હા, બપોરે, हाँ, રાતે, हाँ, આખી રાત જાગશો નહીં, हाँ, બપોરે કરી લો અડધો કલાક, हाँ, પણ જાગતા રહેજો। हाँ, જાગ્યા પછી ઊંઘશો? नहीं, આપણે દાદા કહે છે ઉઘાડી આંખે બધા સૂવે છે, ઉઘાડી આંખે સૂવે છે। હવે પૂરો થયો છે હા ટાઈમ, એટલે પૂરું કરીએ છીએ। એટલે સારાંશ શું કહે છે કે આપણને જે જ્ઞાન મળ્યું છે એને સાચવી જાણો, ઉપયોગ કરી જાણો। જે પ્રદીપભાઈ કહેવા શું માગે છે કે સંસારનો જ આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે, સંસારને જ સાચું સુખ, અનાદિ બિલીફ એ ગણ્યું છે। હવે કે છે આ જગતની વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી। હવે કઈ કઈ ખપે છે જ નરેન્દ્રાબેનને, એના પ્રતિક્રમણ કરવાના, નિશ્ચય કરવાનો, પરાક્રમ કરવાનું, આ પાર કે પેલે વાર। હવે દાદા ભગવાન સિવાય કશું ખપતું નહીં, બરાબર? बराबर, बहुत નમો अच्छा, વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ શાહુણમ, ऐसो पंच नमुक्कारो सौ अपावपणासणो मंगलाणं च सौवेशीं पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ। હવે 8 વાગે આપણે પાછું હોલમાં પ્રસાદી લઈને ભેગા થઈએ। જય સચ્ચિદાનંદ।